Alright, so today we are going to study the Phillips curve that is being given by A.W. Phillips in 1958. Alright, so I have told you that the Phillips curve has been given by A.W. Phillips in 1958. Now, why he has given this curve, or what is the explanation for this curve, is that in the short run, right, we know that prices are variable, but wage rate are not variable, they are fixed, right? So, but in long run, both becomes variable, wage rate be as well as the prices also, right? So, suppose if prices increases, that means there is inflation. So that means expectation of the entrepreneurs will be more, right? Profitability of producers will be increased in that case when prices increases, right? So जब एक rational producer होगा, what he will do, he will produce more. जब वो ज़्यादा production करेगा मतलब investment ज़्यादा करेगा, और investment ज़्यादा करेगा मतलब demand for labor will be more. So that means demand for labor will be more, then unemployment get reduced. Got it? So that means when there is inflation, profit expectation is more, investment will be more, demand for labor will be more. That leads to lower the rate of unemployment, right? So that is a rational explanation of Phillips curve कि inflation जब है unemployment घट रहा है. So what Phillips has given कि the Phillips curve is it shows that there is an inverse relationship between the rate of unemployment and rate of increase in nominal wages बोलेंगे या फिर inflation बोलेंगे, right? There is a negative relation between these two. Unemployment घटेगा, inflation बढ़ेगा, unemployment बढ़ेगा तो inflation घटेगा, like that, right? So there is an inverse relation between the two. ये A.W. Phillips ने अपने study में find out किया, और उसकी जो स्टडी थी that was based on the United Kingdom की डेटा थी from 1861 to 1957. उस डेटा के बेसिस पे the study is an empirical study, right? So UK के डेटा पे based ये study आई कि there is an inverse relationship between unemployment and inflation, right? That means there is a trade-off between these two, right? These two variables, that is unemployment and inflation, right? So Phillips ने फिर अपने इस डेटा को एक स्कैटर डायग्राम से प्लॉट किया. ये जो डेटा था from 1861 to 1957 of UK, right? स्कैटर डायग्राम आपको पता है स्टैट्स में, राइट? सो जहाँ पे मतलब आपका पॉइंट्स से आप डिनोट करते हैं, राइट? सो जो स्कैटर डायग्राम का जो पैटर्न आया, दैट वाज दिस इस तरह का एक पैटर्न आया दैट शोज दैट देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, हमने ओवाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट लिया है, राइट? सो दैट इज द पैटर्न ऑफ दैट Phillips has found from the UK's data from 1861 to 1957, right? So what is Phillips curve? It basically shows a relationship between unemployment and inflation, right? और UK के data पे based ये curve जो है, ये empirical study पे based ये curve निकल के आया, right? And Phillips found कि there exists a trade-off between unemployment and inflation, right? So it indicates a stable and negative relation between unemployment and inflation, right? So अगर हम लोग Keynesian policy में जाएं, अगर जब recessionary process शुरू हुआ after the World War, right? After effects of World War, then what happened is कि कई सारे economies ने Keynes की policy को adopt किया, right? Where he found कि the problem is from the recession का problem is from the demand side, right? So he promoted to increase the or expand the aggregate demand, right? So to increase aggregate demand, we have to increase the government spending. He has explained ki who will invest during or who will raise the demand during the recessionary period, right? So nobody will come forward, right? Private sector to आएगा नहीं. So he has said ki government sector should come forward and make investment or give employment to the people, right? So that means aggregate demand should be increased by increasing the government spending. जब government spending बढ़ेगा, there will be increase in investment, right? There will be increase in demand for labor. There will be when demand for labor increases,
what will happen? Labor will become scarce, right? लेबर की कमी हो जाएगी बिकॉज लेबर आर गेटिंग एम्प्लॉयड नाउ. अब लेबर की संख्या कम होने से लेबर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, सो दे विल डिमांड मोर वेजेस. जब वेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ये वेज इन्फ्लेशन आता है, जो कि फिलिप्स ने फाइंड आउट किया. बट कीन्स ने अपनी थियोरी में ये बताया दैट जो इन्फ्लेशन है या प्राइस राइज है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है. हमने पढ़ चुके हैं ये कीन्स की थियोरी हम लोग कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो इन्फ्लेशन नहीं आता है या प्राइस राइज नहीं होता है. प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और फिक्स्ड, राइट, टिल वी रीच फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचने के बाद भी अगर डिमांड बढ़ती है देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ओनली, राइट, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है. दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट हो जाता है. सो इट विल ओनली लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, राइट. सो ये कीन्स की पॉलिसी पहले तो बहुत लोगों ने अडॉप्ट की. न्यू डील पॉलिसी आपका अमेरिका का, राइट, यूएस का, आफ्टर टू रिकवर फ्रॉम दी वॉर इफेक्ट्स, राइट. सो बहुत सारी इकोनॉमीज ने इसको अडॉप्ट किया और बहुत सक्सेसफुल भी रहा, राइट. बट जब फिलिप्स ने ये बताया तो इट रेज्ड अ क्वेश्चन मार्क, इट बिकम अ क्वेश्चन मार्क ऑन दी कीन्सियन पॉलिसी, राइट. कीन्स ने बोला कि इन्फ्लेशन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही आता है. बट फिलिप्स ने बताया दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज इट लीड्स टू राइज इन डिमांड फॉर लेबर, राइट, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि वेजेस भी बढ़ती हैं साथ में. सो दैट लीड्स टू वेज इन्फ्लेशन, राइट. बट कीन्स ने अपनी थियोरी में ये कभी मेंशन नहीं किया कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, राइट. सो ये एक क्वेश्चन मार्क फिलिप्स कर्व के आने के बाद जो है एक क्वेश्चन मार्क रेज हो गया ऑन दी कीन्सियन पॉलिसी, राइट. सो व्हाट वाज द रिलेशन दैट वी कैन, वो हमने डायग्राम हमने यहाँ पे देखा ही, दैट इट शोज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन हियर, राइट. सो वी कैन प्लॉट इट हियर इन दिस वे दैट यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन देखा और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. सो फिलिप्स कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है विच शोज दैट इज द नेगेटिव और ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. दैट मीन्स अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पहले 5% है, राइट, और उस टाइम पे 2% इन्फ्लेशन था, राइट, इकोनॉमी में. इफ वी वांट टू डिक्रीज दिस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट घटाना चाहते हैं, वट एवर, राइट. सो सपोज हम लोग 5% से इसको 3% करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये इन्फ्लेशन ऑफ 6% भी झेलना पड़ेगा. 2% से ये बढ़ के 6% हो गया है इन्फ्लेशन इसके साथ ही, राइट. सो दैट इज व्हाट फिलिप्स हैज एडवोकेटेड, राइट. नाउ व्हाई दिस फिलिप्स कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स या नेगेटिवली स्लोपिंग है ये कर्व? बिकॉज जब मैंने बताया कि जब लेबर मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से या निवेश बढ़ने से डिमांड की लेबर बढ़ेगी तो लेबर जो है कम हो जाएगी, लेबर की संख्या कम हो जाएगी, इट विल बिकम स्केर्स, राइट. सो उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, राइट. ट्रेड यूनियंस जो है हायर वेजेस डिमांड करेंगे. जब ज्यादा वेजेस देने पड़ेंगे प्रोड्यूसर्स को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस और वेज इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं, राइट. सो क्या हो रहा है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट घटा रहे हैं तो इट ब्रिंग्स विद इट वेज इन्फ्लेशन. दैट इज द रीजन द कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग हियर, राइट. ऑलराइट, नाउ सो कीन्सियन पॉलिसी इम्प्लीकेशन को अगर हम लोग देखें सो हम लोग पाते हैं कि जो कीन्स की पॉलिसी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहिए, बट इसके साथ साथ हमने ये भी फाइंड आउट किया दैट कि वो जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के लिए हमें इन्फ्लेशन भी झेलना होगा उसके साथ इकोनॉमी में, राइट. सो देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जब हम अपनाएंगे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के द्वारा थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग और थ्रू मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट अपनाती है टू रेज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट or to lower the unemployment rate, it brings with it the higher inflation rate also, right. So कीन्स का पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हम लोग ये फिलिप्स कर्व के द्वारा निकालते हैं, राइट. सो अच्छा, अब ये तो था फिलिप्स के द्वारा दिया गया रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. नाउ आफ्टर 1970s
the वर्ल्ड इकोनॉमी फाइंड आउट कि जो फिलिप्स कर्व का ट्रेड ऑफ है इट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. क्यों? क्योंकि उन्होंने पाया आफ्टर दैट द डेटा आफ्टर दैट इट जो रिलेशन है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन वो जो है उसका वो अभी जैसा फिलिप्स ने बताया वैसा अपियर नहीं हो रहा था, राइट. विद अ गिवन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लेशन रेट्स थे और वहां पे कोई ट्रेड ऑफ नहीं दिख रहा था बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था. दैट मीन्स दोनों में अब एक पॉजिटिव रिलेशन या दिख रहा था, या बोल लीजिए कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी था साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी था उतना ही, राइट. तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ अनएम्प्लॉयमेंट घट नहीं रहा था, राइट. सो जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रीडमैन एंड फेल्प्स, राइट, दे ऑफर्ड वन एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है और एक सीरीज ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है. और उन्होंने बताया कि ये क्यों होगा, व्हाई देयर इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू हैज एंडेड, क्यों ये खत्म हुआ है बिटवीन द रिलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू जो फिलिप्स कर्व बताया गया था, राइट. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जो कि 1970s के बाद देखा था, है ना. और इसको कंफर्म किया था फ्रीडमैन एंड फेल्प्स ने अपने एक्सप्लेनेशन से, राइट, अपनी थियरी से. सो 1970s के बाद जो डेटा दिया गया था, स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन होती है वेयर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट भी है साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी है, राइट. इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. तो ये हुआ था व्हेन ऑयल क्राइसिस केम इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, राइट. सो वहां पे देखा गया, क्या पाया गया कि लो ग्रोथ रेट तो थी इकोनॉमीज की, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही एट द सेम टाइम बढ़ रहे थे, राइट. सो इकोनॉमिस्ट हैड डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग दिस फिनोमेनन कि क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. सो जो मॉनेटरिस्ट एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मिल्टन फ्रीडमैन एंड फेल्प्स, राइट, जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फिलिप्स कर्व डेवलप किया, राइट. ओरिजिनल जो फिलिप्स कर्व था उसका, और उसमें जो है एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड एक फिलिप्स कर्व बनाया, राइट. दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर. सो फ्रीडमैन ने बोला कि यहाँ पे एक फिलिप्स कर्व नहीं होगा, सीरीज ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होंगे और एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होगा, राइट. सो दैट वाज द पैटर्न. तो ये जो पर्पल डॉट्स देख रहे हैं, दैट वाज द डेटा आफ्टर 1971 टू 1984. ये डेटा, ये आपका ये पिछला जो फिलिप्स ने फाइंड आउट किया बिफोर 1970, राइट. 1950 से लेके 1970 का ये रेड वाला जो पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम जो बनाया है, राइट, ये डेटा है. बट ये जो पर्पल डॉट्स हैं ये डेटा है आपका 1971 से लेके 1984 तक, राइट. सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सो देयर इज नो ट्रेड ऑफ, राइट. दोनों ही ज्यादा है. तो एक जगह पे यहाँ पे एग्जाम्पल है 1975 में इन्फ्लेशन भी 9.3% था और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई था, दैट इज 8.3%, राइट. तो देयर इज नो ट्रेड ऑफ एग्जिस्टेड नाउ, राइट, आफ्टर दैट पीरियड. सो मॉनेटरिस्ट ने अपना इस पे फिलिप्स कर्व को एक मॉडिफाइड वर्जन इसमें दिया, राइट. और फ्रीडमैन ने बोला एक लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व होगा एक वर्टिकल फिलिप्स कर्व होगा जो कि पैरेलल होगा टू द OY एक्सिस, राइट. और इट विल बी लोकेटेड, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कल हम लोग पढ़ रहे थे, राइट. सो वो जो फिलिप्स कर्व है वर्टिकल वाला लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व, दैट विल बी लोकेटेड एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. सो यहाँ पे जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is the unemployment rate where inflation will be zero, right. So at this rate workers जो हैं they will believe कि यहाँ पे कोई inflation नहीं है, right, और inflation नहीं होने वाला है. So expectation को डाला गया फ्रीडमैन के एक्सप्लेनेशन में, थ्योरी में, इसमें क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन को ऐड ऑन किया गया, राइट. सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, लेबर्स को पहले शॉर्ट पीरियड में दे आर बिलीविंग कि यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होने वाला है इन द इमीडिएट फ्यूचर, राइट. सो व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जब अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगी, सो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, राइट. सो एग्रीगेट डिमांड दैट मीन्स एक्सपेंशनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट जब अडॉप्ट करेगी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग और फिस्कल पॉलिसी जो भी, ठीक है. सो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, राइट. लेबर की डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बट इट ब्रिंग्स विद इट
an increase in the rate of inflation as well. जब वर्कर्स देखेंगे कि इन्फ्लेशन, अब उनको भाप गए कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है तो हमारी रियल वेजेस कम हो रही है, रियल इनकम कम हो रहा है, तो वो लोग अपनी सप्लाई घटा देंगे, राइट? जब सप्लाई घटा देंगे वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसी अनएम्प्लॉयड लेबर के पूल में आ जाएंगे, सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फिर से वापस वहां पे वो लोग पहुंच जाएंगे, राइट? Alright, so this can be explained, ये जो explanation that this can be explained with this diagram, right? So here we can see this is the SRPC, that means short-run Phillips curve, right? जैसे कि फ्रिडमैन ने अपने explanation में बताया that there will be series of short-run Phillips curve. So हमने SRPC 1, 2, 3 बनाया है, right? और एक long run का Phillips curve जो कि natural rate of unemployment पे एक vertical और parallel to the OY axis जो एक Phillips curve बनाया है. So first explain कि ये कैसे बनेगा, right? So this is the SRPC 1. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि initially the natural rate of unemployment was 8%, right? It was 8%. और गवर्नमेंट ने अपनी और जो है इस पे 0% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है अभी, राइट? 0% इन्फ्लेशनरी रेट है. नाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस टू डिक्रीज दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी, राइट? सो गवर्नमेंट ने चाहा कि हम 8% से 3% इस अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को घटाएं, राइट? सो इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए, राइट, सो व्हाट हैपेंस इज उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आता है. सो इन्फ्लेशन राइज, सपोज इट इज 2%, सो OP1 या फिर 2% इन्फ्लेशन आ गया, विद दैट डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? जब अनएम्प्लॉयमेंट घटाना चाहा गवर्नमेंट ने, सो मैंने बताया वो एक्सप्लेनेशन सारा, ट्रेड यूनियंस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, व्हेन डिमांड फॉर लेबर विल बी मोर, राइट? सो दे विल डिमांड हायर वेजेस, जिसकी वजह से वेज इन्फ्लेशन आता है. सो ये इन्फ्लेशन आ गया. सो द पॉइंट वी रीच फ्रॉम A to B हियर, राइट? नाउ व्हेन द मल्टीप्लायर का इफेक्ट और वो जो गवर्नमेंट स्टिमुलस दिया गया उसका वो वियर आउट हो जाता है, सो वो वियर आउट होने से और मल्टीप्लायर का इफेक्ट खत्म होने से वी विल अगेन कम बैक टू दिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो वापस यहाँ आ जाएंगे, राइट? नाउ देयर इज एन एक्सप्लेनेशन विद लेबर विद मनी इल्यूजन और विदाउट मनी इल्यूजन, राइट? सो शॉर्ट पीरियड में लेबर को नहीं भाप पाएंगे कि इन्फ्लेशन भी साथ में आया है, राइट? सो इन्फ्लेशन को वो लोग नहीं भाप पाएंगे, सो दे विल मूव फ्रॉम B to A अगेन, राइट? और वापस से उसी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे वापस आ जाएंगे. बट अगर इन द लॉन्ग रन व्हेन दे फील कि उसके साथ इन्फ्लेशन भी हुआ है और उनकी वेज रेट एक्चुअल में बढ़ने के बजाय घट गई है, रियल वेजेस कम हो गए मतलब, राइट? सो दे विल डिमांड हायर वेजेस, वो फिर से हायर डिमांड करेंगे उस इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, अपने इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए डिमांड करेंगे. सो वो इन्फ्लेशन और वो वेजेस और बढ़ाने पड़ेंगे. सो ज्यादा वेजेस करने से उसके साथ ये इन्फ्लेशन भी, सो वो लोग क्या करेंगे विदाउट मनी इल्यूजन, ये तो था विद मनी इल्यूजन, है ना, कि उनको लग रहा है कि हमारी वेजेस उतने की उतनी ही है, तो वो दे विल कम फ्रॉम B to A अगेन, राइट? बट उनको लग रहा है कि नहीं इन्फ्लेशन भी आया है साथ में, सो दे विल नॉट मूव फ्रॉम B to A बट विल द इकोनॉमी विल मूव फ्रॉम B to C. दैट मीन्स जब वो ओरिजिनल लेवल पे वापस आए वो अपने साथ इन्फ्लेशन भी लेके आया ऑफ 2%, राइट? सो अगेन दोबारा से अगर गवर्नमेंट स्टिमुलस इंक्रीज हो, फिर से गवर्नमेंट स्टिमुलस दिया जाता है या एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती है, राइट? दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, सो अगेन द इकोनॉमी रीचेस फ्रॉम C to D नाउ, राइट? सो अगेन जब ये वियर आउट हो जाएगा गवर्नमेंट का स्टिमुलस या पैकेज, राइट, द इकोनॉमी अगेन कम्स बैक फ्रॉम D to C, राइट, विद मनी इल्यूजन. अगर मनी इल्यूजन नहीं है तो दैट मीन्स वर्कर्स को पता है कि हमारी रियल वेजेस घट रही हैं इस इन्फ्लेशन के आने से, 2 to 6%, इसके साथ इन्फ्लेशन भी आया जब अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा घटा तो, राइट? सो ये 6% के लिए वो लोग अपनी वेजेस की डिमांड करेंगे दोबारा से, हायर वेजेस की, जिसकी वजह से इकोनॉमी विल मूव नॉट फ्रॉम D to C नाउ, इट विल मूव फ्रॉम D to E. सो ये इस तरह से ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का एक सीरीज होता है जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग इन पॉइंट्स को, SRPC के इन पॉइंट्स को देखें तो इट विल बी अ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, राइट, वेयर वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है,
इन्फ्लेशन घट नहीं रहा, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी वहीं कम है, राइट? So that is the long run Phillips curve. So this is the explanation done by monetarists and the new classicals, right? So hope आपको ये समझ आया होगा, और ये मैं इसी का explanation है, इसी diagram का, right? So this is the process how stagflation is being explained through this diagram, right? So अच्छा, अब यही सेम चीज को हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, राइट? सो here we have taken the prices and here we have taken the national income, right? कीन्स के जब एक्सप्लेनेशन थे तो यहाँ पे वेरिएबल्स अलग थे, यहाँ प्राइस लेवल नहीं था, है ना? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लिया था हमने, यहाँ नेशनल इनकम लिया था, तो दैट इज द रीजन आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे पॉजिटिवली स्लोपिंग होता था, आप लोग कंफ्यूज मत होना इसलिए। Here we have taken the another variable जो कि प्राइस लेवल है और यहाँ पे नेशनल इनकम लिया है। So this is the original aggregate demand and aggregate supply. So this is the equilibrium point, right? दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। So यहाँ पे OI equilibrium income और GDP, right? And this is the OP price level in the economy, right? अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब बढ़ेगी, that means aggregate demand has been increased, है ना? To decline unemployment or increase GDP or whatever reason, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड AD से AD1 जब हो जाएगी, द इक्विलिब्रियम नाउ विल शिफ्ट टू दिस टू बी, राइट? विद अ हायर प्राइस दैट इज OP1, थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी आया बट उसके साथ साथ बहुत ज्यादा नेशनल इनकम भी बढ़ा है। सो इक्विलिब्रियम इनकम इज नाउ OI1, बट क्योंकि इसके साथ इन्फ्लेशन भी आया, राइट? सो दैट विल लीड टू हाई, अगेन लेबर यूनियन ज्यादा वेजेस डिमांड करेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगेन क्या होगा, एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई आपका शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट? दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई घट गया। सो उसके बाद हम लोग B2C, यहाँ अब नया जो इक्विलिब्रियम आया, नए डिमांड और नए सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व का ये, राइट? सो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट C पे हम लोग देख रहे हैं कि वापस से हम लोग वही OI लेवल ऑफ इनकम पे, नेशनल इनकम या GDP पे पहुंच गए हैं, रियल GDP पे पहुंच गए हैं, और उसके साथ साथ हमारा प्राइस OP नहीं रहा, अब प्राइसेस भी बढ़ गया है, राइट? प्राइसेस भी वापस से बढ़ गया है, फ्रॉम OP टू नाउ इट इज OP2, राइट? सो दिस इज हाउ विद द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो हम लोग ओरिजिनल लेवल ऑफ नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे तो वापस आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अगेन ऑफ दिस डायग्राम, राइट? सो क्या करने की क्या जरूरत है कि हमने देखा कि डिमांड साइड से जब हम लोग देख रहे हैं, राइट? सो क्या हो रहा है कि साथ में साथ आपका ये भी इंक्रीज हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका, जैसे जैसे डिमांड साइड हम लोग सिर्फ को हम लोग अगर देख रहे हैं तो उसके साथ साथ वो इन्फ्लेशन लेके आ रहे हैं। So what is the need is to manage the supply side now, right? Supply side management भी करेंगे साथ में साथ, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, right? So it can curb the inflation rate, right? So उसके हम लोग अगर नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, so उसके साथ साथ इन्फ्लेशन ना बढ़े, उसके लिए हमें सप्लाई साइड को मैनेज करने की जरूरत है। So अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 10% से 5% हो, right? So इकोनॉमी शुड ये यहाँ से यहाँ जाए, ये हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इस इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इन पोजीशंस पे जाए, राइट? सो लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व, राइट? सो इसके लिए हमें इफेक्टिवली सप्लाई साइड को मैनेज करना होगा, राइट? सप्लाई साइड शुड बी मैनेज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल, राइट? सो उसकी वजह से आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो सकता है विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लेशन, राइट? सो पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट लीड टू इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, राइट? कि वेजेस जो है, सॉरी, इन्फ्लेशन जो है ज्यादा होने वाला है इस तरह से। सो अगर if they will not demand due to the lack of expectation of people या decline in the expectation of people, अगर वो लोग हायर वेजेस की डिमांड नहीं करेंगे या वो लोग बार्गेन नहीं करेंगे ज्यादा वेजेस के लिए, सो उससे क्या होगा, obviously there will be no inflation will not come in that case, क्योंकि वेज इन्फ्लेशन नहीं होगा, right? So supply side management should be done properly, that will not so it will not lead to increase in the expectation of people, right? Whereas demand side से क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है,
which is leading to more inflation in the economy. So supply side also should be managed properly here, right? So this is how we can explain the Phillips curve. So that is